प्रोग्राम में चेक कर लिए इसको? नहीं कर पाए। Now next we discuss about decision control and loop control structure. So under control structure, as like any programming language, there is a decision making control and loop control. तो लूप कंट्रोल बेसिकली यूज फॉर आइटरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई रिपीटेटिव जॉब करना है तो वी जस्ट यूज द लूपिंग, जैसे फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप सी सी प्लस प्लस या जावा में भी यूज करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए, कंडीशनल चेक करने के लिए, अब इन सी लैंग्वेज यू ऑलरेडी हैव a concept about various decision making like if else if ladder, nested if, switch statement, go to statement, break, continue, all are used in Go programming language also. So whenever any conditional checking is going on, then we just use the decision control structure. Now we just check out some syntax of the particular डिसीजन मेकिंग फर्स्ट। तो गो डिसीजन मेकिंग, बेसिकली डिसीजन मेकिंग आपका काम यूज क्यों होता है प्रोग्राम में, ये किसी भी तरह के कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो जनरल जो सिंपल इफ हम लोग यूज करते हैं, यहाँ भी सिंपल इफ यूज होगा। तो सिंपल इफ में वी जस्ट चेक द कंडीशन विच हैव टू अल्टरनेटिव। तो इफ द कंडीशन इज ट्रू, then the if followed statement get executed, otherwise the cursor move to the next statement. And if you are using multiple simple if statement, then the next statement is your another if statement. Now the way in which through which we write the if statement in Go programming language, we just follow this syntax. If there is a condition, now here we do not enclose the condition within any parenthesis, curly brace or bracket. आप सिंपली कंडीशंस लिखेंगे और उस कंडीशंस के बाद यू हैव टू मेंशन द ओपनिंग कर्ली ब्रेस and then whatever statement you want to execute after checking the condition. If the condition is true, then the statement followed by this if get executed, otherwise the cursor move to the next statement. Just like if a is equal to b, suppose अगर a और b का कोई वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर, okay, so suppose करो कि if we use two variable where a b and of integer type, ठीक है, तो integer type and a is equal to some value 10 and b is equal to some value, again we use 10. So अगर both a b contains the same value, then the condition is true. If a equal to b, then the particular line of code get executed. So what is the outcome of this? अगर a b के बराबर नहीं होगा, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो आपका नेक्स्ट लाइन में कर्सर जाएगा। तो fmt डॉट f print ln a equal to b. What is the outcome of this? कोई बताएंगे? आउटपुट ऑफ दिस 1 सर। 1। तो हम तो कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट कर नहीं रहे हैं। हमने बताया था ना कि एक प्री डिफाइंड आपका जो है बुलियन, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट अब यहाँ पर है, तो प्री डिफाइंड बुलियन कांस्टेंट के लिए हम बताए थे ना कि ट्रू और फॉल्स होता है। तो अगर a इक्वल टू बी है, ये ट्रू है, तो a इक्वल टू बी के जगह यहाँ क्या प्रिंट होगा?
ट्रू। अगर अगर ए और बी का वैल्यू चेंज कर दें यानी कि डिसिमिलर ले लें तो इस केस में क्या प्रिंट होगा, ए इक्वल टू बी की जगह फॉल्स। जस्ट let's check this one. So package here we write suppose where a comma b of integer type and then a just we take the input then so fmt dot enter line enter first value fmt, you just take the user input scan percent a and value. See if just take if we check a equal to b, ठीक है ना, अगर a equal to b होगा then the statement get executed, that is fmt dot print ln just print a equal to b and then we close this one and then fmt dot a equal to b. Now see यहाँ हम दोनों जगह a equal to b ही प्रिंट करा रहे हैं जो अभी हम लोग देखे केस. Now when you execute this program see first value enter first value is the error unexported name fmt dot action smallly create. Oh, enter first value was 23. First we check suppose 10. Second value is also 10. Now a and b both are equal. So a equal to b. So then if followed statement get executed, then what is the result when we print a equal to b? True. It is true.
Now see, when we use simple if, then in this case कर्सर आपका क्या है, ये तो आपका वर्क किया ही, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी वही काम हुआ, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो है वो दूसरा कंडीशन चेक नहीं किया, दैट्स व्हाई 2 times true is printed. Are you getting the point? 2 बार ट्रू प्रिंट हुआ। यस सर। हाँ, लेकिन अब ये सिंपल इफ का आपका जो है ड्रॉबैक है कि इफ यू हैव टू अल्टरनेटिव फॉर द पर्टिकुलर कंडीशन, देन यू हैव टू टेक 2 times सिंपल इफ। तो अगेन यू हैव टू यूज हियर, आपको यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार फिर से इफ और दूसरा कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ए नॉट इक्वल टू बी अगर है, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे देना नहीं है, ए अगर नॉट इक्वल टू बी है तो उस केस में आप फिर से इसको प्रिंट कराइए, ठीक है ना, ए इक्वल टू बी। क्यों? कि यहाँ पर आपको अगर ए बराबर बी नहीं है तो ए बराबर बी होगा, तो दूसरा इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, ए बराबर नहीं होगा बी के। अब बड़ा हो छोटा हो दोनों ही केस में बराबर नहीं केस आता है, तो हमारे पास ए इक्वल टू बी के लिए अल्टरनेटिव। तो अब सिंपल इफ का ड्रॉबैक जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है कि यू हैव टू यूज ऑल कंडीशंस टू फाइनलाइज द सॉल्यूशन। नाउ व्हेन वी यूज द सेकंड कंडीशन विथ सिंपल इफ, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। This time we change the value. Now see, only false is printed because 10 and 12 both are not equal. So first if statement do not get executed, and second if, yani ki when the cursor move to the next statement, the next statement is also another if statement. So here we are checking whether a is equal to b or not. So if a is equal to b, यहाँ पर a आपका b के बराबर नहीं है, तो 10 और 12 है, देन व्हाट इज प्रिंटेड, दैट इज द प्री डिफाइंड कांस्टेंट। तो प्री डिफाइंड बुलियन कांस्टेंट में a इक्वल टू b की जगह फॉल्स प्रिंट कर गया। इट इज क्लियर टू यू? यस सर वहाँ पे स्कैनएफ क्यों नहीं लिखे हैं? क्या सर वहाँ पे स्कैन क्यों लिखे हैं, स्कैनएफ क्यों नहीं लिखे हैं? स्कैन, हाँ ठीक, गुड क्वेश्चन। स्कैनएफ आप पर लिखेंगे अगर, तो फिर आपको फॉर्मेटिंग जो सी का है कंप्लीट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर स्कैनएफ यहाँ यूज करेंगे तो स्कैनएफ में आप कैसे यूज करते थे, स्कैनएफ में इसका आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा, परसेंटेज डी, एंड देन कॉमा सेपरेट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसका जो सी में मॉड्यूल यूज करते थे वो करना पड़ेगा ए और बी के लिए, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। दूसरा वैल्यू नहीं है। Second value false.
ए को लेने के बाद ए का वैल्यू इनपुट हो गया स्टेटमेंट दैट इज द ओनली डिफरेंस। स्कैनफ जब लेंगे तो आपको सी के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर स्विच हो जा रहा है ना। प्रेस करने के बाद दूसरा प्रिंटेड अकॉर्डिंगली स्कैन यूज करेंगे तो करना चाहिए। तो मल्टीपल वैल्यू अगर आपको लेना होगा, यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यू लेना होगा तो स्कैनफ यूज करिएगा, और अगर सिंगल पैरामीटर पास करना होगा तो आप स्कैन यूज करेंगे। तो मल्टीपल वैल्यू स्कैनफ, बेसिकली स्कैनफ हम लोग यूज ही करते हैं मल्टीपल वैल्यू के लिए। तो अगर एक साथ आपको मल्टीपल वैल्यू लेना होगा ए बी सी डी कुछ भी, तो स्कैनफ फॉर्मेट यूज करिएगा, अदरवाइज यू कैन यूज स्कैन। इज इट ओके? यस सर। तो स्कैनफ का यूज जैसे सी में करते हैं तो उसी तरह से फॉर्मेटिंग के लिए यूज करेंगे। अब अगर हमको ए बी सी सबको यूज करना होगा, इसलिए स्कैनफ फंक्शन का भी सपोर्ट आप ले सकते हैं। और अगर इंडिविजुअली कहीं पर यूज करना होगा तो स्कैनफ की जगह स्कैन और सिंपली एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल पास कर देंगे, देन इट विल वर्क। नाउ यहाँ पर एक चीज हम लोग देखे जो ड्रॉबैक था एक तरह से, कि आपका जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इफ द कंडीशन है टू अल्टरनेटिव, देन यू हैव टू चेक आउट ईच अल्टरनेटिव। दोनों के लिए कंडीशंस लेना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर ट्रू है फॉल्स है, वो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस है। तो यहाँ पहला कंडीशंस हम चेक करके उसके बाद अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका कर्सर के बाद भी, यानी कि यहाँ तो बेसिकली हम लोग कहाँ लिखे थे, आउटसाइड ऑफ द स्टेटमेंट लिखे थे। यहाँ जो भी लिखे थे, यहाँ इफ कंडीशन क्लोज करने के बाद लिखे थे fmt.println। तो उस केस में यहाँ पर आपका जो है सिंपल इफ के लिए दोनों कंडीशंस मेंशन करने का जरूरत पड़ा। नाउ वी ओवरकम दिस सिचुएशन व्हेन वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ इफ एल्स स्टेटमेंट में द सेम वे वी राइट द प्रोग्राम, बट कंडीशंस कैसे है, यहाँ एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर आप कोड लिख रहे हैं
ठीक है ना। तो कोड लिख रहे हैं, तो इफ थिंग चेक, नाउ सी, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इसका भी जहां पर आपका इफ कंडीशन एंड होगा, ठीक उसके बाद ये कर्ली ब्रेस होगा, अदरवाइज जस्ट सी देयर इज ए सिंटेक्स एरर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सेम थिंग यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि whenever your condition is end, at the place where your condition is end, you just place curly brace, opening curly brace there। तो बेसिकली ये चीज आप जब VS कोड या गोलैंड किसी आईडी में करेंगे, तो वो ये पर्टिकुलर पार्ट आपको समझने में नहीं आएगा, क्योंकि ऑटो सिंटेक्सिंग वहां होगा। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर समझना है। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने उसको यूज किया। नाउ सेम सिनेरियो वी हैव फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट आल्सो। नाउ 10 20 सिमिलर है तो फॉल्स होगा, अगर सेम होता तो ट्रू होता है। नाउ इन दिस केस again, if else statement you already know, whenever we have a condition having two alternative, then if the condition is true, we just mention the statement under if statement, and if followed statement is a statement for condition is true, and once the condition is false, then we have the statement which is followed by else, and else followed statement is the statement in which the condition is false। तो condition false के लिए हमारा else followed स्टेटमेंट होगा। नाउ यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर आपका कंडीशन यहाँ खत्म हो रहा है, तो ओपनिंग कर्ली ब्रेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के अंदर स्टेटमेंट 1 है, और जहां आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है ठीक उसके बाद एल्स, और एल्स के ठीक बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेस और स्टेटमेंट 2 आपका होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में आपका कर्ली ब्रेस क्लोज होना चाहिए, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट। इन दिस पर्टिकुलर मैनर, इफ a इक्वल टू b, then opening brace, and then you just print the particular message, otherwise fmt। so in this way you can write the particular। now see, यहाँ पर अगर हमको ये कंडीशन नहीं लेना था, तो इसके लिए हमको क्या करना था, इसके लिए यहाँ पर else पार्ट को यूज करना था। तो else देखिए, else का प्लेस यहाँ पर समझना है, कहां पर else होगा। अगर if else यूज कर रहे हैं, तो जहां पर if क्लोज होगा ठीक उसके बाद else होना चाहिए, फिर उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपका स्टेटमेंट, एंड देन इट विल वर्क। ठीक है, अगर इसमें सिंटेक्स में थोड़ा सा भी अगर आप जो है लाइन या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लेस ऑफ द पर्टिकुलर else अगर चेंज करेंगे, तो योर प्रोग्राम does not get executed। तो फर्स्ट वैल्यू सपोज 10, सेकेंड वैल्यू 54, तो फॉल्स आएगा। और सी, लेकिन अगर इसको देखिए, इसको एल्स को मिसप्लेस कर दीजिए, एल्स को अगर दूसरे लाइन में ले जाइएगा, तो जस्ट सी व्हाट इज द एरर अकर हियर। जस्ट सी, नाउ द लाइन सिंटेक्स एरर अकर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एल्स एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, तो एल्स जहां से क्लोज हुआ वहीं से एल्स शुरू होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना, सी में या C++ में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में कर्सर ले जाते हैं ना। यस सर। तो ये चीज यहाँ ध्यान देना है कि उसका एक प्लेस से आपका जो है, अब क्या हो गया, सेव नहीं किया क्या? ठीक है, so that is the particular if else। I think it is clear to you। now just try to write one program। एक प्रोग्राम लिखिए, तो you already write this program in C++ to validate whether entered number is even or odd। ठीक है ना, and further you can also check for prime or any other number। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए चेक करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा अभी लूपिंग डिस्कस करेंगे उसके बाद।
तो ये लिख लेंगे ना. Yes, sir. Yes, sir. If you are using laptop, then just write this program and show me how, in which manner you are writing. To validate or to check, you can say whether enter number is even or odd. कोई लिखे? See, here we just use that modulo operator. A modulo 2 is equal to 0, and then we have conditions FMP, whatever you want to print. Percentage D is an number, then percentage D, that is A. Otherwise, odd number. और यहाँ B यूज नहीं हो रहा है, तो इसको कमेंट में डाल देते हैं. और यहाँ Forty-five is odd number. Only you have to follow the syntax, यानी कि syntax जो है उसको देखना है, बाकी जो लॉजिक जो आप जैसे यूज करते हैं वैसे ही यूज करना है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now the next is after simple if and if else, we have next, you can say nested if, यानी कि number of times if लेते हैं अगर, so that is the nesting of if. or you can say else if later also, so we just use the nested if statement. nested if C में पढ़ लिए होंगे, C plus C तो पढ़ लिए होंगे. Yes, sir. C में क्या था सिंटेक्स? C में इन, जो C में था वही C++ में है. नेस्टेड इफ के केस में क्या था, हम लोग 2-3 मॉड्यूल यूज करते थे. इफ कंडीशन है ना, देन स्टेटमेंट 1, एंड इसी के अंदर में दूसरा इफ कंडीशन 1, 2, देन स्टेटमेंट 2, और इस इफ के लिए भी एल्स लिख सकते थे, एल्स, ठीक है ना, स्टेटमेंट 3, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऐसा करते थे ना. यानी कि नेस्टिंग, इफ का नेस्टिंग होगा तो इफ के अंदर या पर्टिकुलर बार, दोनों चीज में,
तो ऐसा भी करते थे और दूसरा ऐसा भी करते थे, इफ कंडीशन 1 देन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2, है ना, विद इन ब्लैक, देन इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 3 एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट। ऐसा यूज किए होंगे। Yes, sir. ये मॉड्यूल यहाँ पर भी हम लोग जब यूज करेंगे तो इफ स्टेटमेंट कैन बी आपका जो है वो एल्स स्टेटमेंट फॉलोड हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम नंबर ऑफ टाइम्स कोई कंडीशंस को चेक करें। जैसे जनरली हम आप किए होंगे एक प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसको आप C++ में भी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कंजम्पशन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या दिया रहता है, यूनिट कंजम्पशन, टोटल यूनिट कंजम्पशन आप इनपुट लेंगे या प्रेजेंट और पास्ट रीडिंग यूज करेंगे। तो टोटल यूनिट कंजम्पशन इज द इनपुटेड वैल्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज सर्टेन मेजर कि 0 to अगर 100 है तो मीटर आपका फिक्स्ड मीटर रीडिंग मान लेते हैं कि 50 रुपीज फिक्स्ड हो गया। 101 से अगर आपका 150 है तो 50 प्लस जो नेक्स्ट 50 है, यानी कि नेक्स्ट 50 पर, यानी कि 101 से 150 पर आपका कितना लगेगा एट द रेट ऑफ, ठीक है ना, 3 रुपीज पर यूनिट। देन 151 से आपका 200 है उस पर, अब देखिए 50 रुपीज हो गया और 3 रुपीज नेक्स्ट 50 पर आप अगर 3 रुपीज होगा तो कितना हो जाएगा, 200 फिक्स हो जाएगा ना। यानी अगर किसी का 151 से ऊपर यूनिट यानी 150 से ऊपर हुआ तो ये 200 तो इसका फिक्स हो गया और बाकी जो उसके आगे है उस पर कितना, 4 रुपया पर यूनिट। ये 4 रुपया पर यूनिट किस पर हो रहा है, 151 से 200 के बीच में, यानी कि अगला 50। तो अगर हम यहाँ से 201 से 250 ले तो अब यहाँ पर कितना फिक्स हो जाएगा, जिसका भी 200 यूनिट उठा उसका तो 400 तो रुपया फिक्स हो गया और यहाँ पर एट द रेट 5 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना, और 251 एंड एबव इसका भी है। तो अब देखिए यहाँ अगला 50 पर अगर 5 रुपये के यूनिट के हिसाब से चलेगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना। ये हो गया 650 प्लस और इस 250 के ऊपर जो यूनिट है उस पर 6 रुपीज पर यूनिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो आपका जो बिल जो है जनरेट होगा, बिल पेड, वो ऑन द बेसिस होगा यूनिट कंजम्पशन। तो अगर सपोज करो कि यूनिट कंजम्पशन यूजर एंट्री किया, यूनिट कंजम्पशन इज इक्वल टू मान लेते हैं 60 यूनिट कंज्यूम किया गया, तो बिल पेड कितना होगा, 60 यूनिट अगर हुआ तो आपका 0 to 150 है ना। Yes, sir. तो ये तो 50 रुपीज ही इसको बिल पेड करना पड़ेगा। 100 तक में 50 रुपया फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। अगर यूनिट कंजम्पशन अगर आपका 60 यूनिट से ज्यादा, मतलब कि अगर 120 यूनिट उठा तो ये दूसरे स्लैब में आ जाएगा। Yes, sir. तो दूसरे स्लैब में आएगा। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा लॉजिकल रिलेशनल सारा ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ यूनिट कंजम्पशन 120 यूनिट है तो उस केस में बिल पेड आपका जो हो जाएगा, इसीलिए ये चीज आपको सब में करना होगा क्योंकि कंडीशन लेंगे तो आपका जो कर्सर है डायरेक्ट इस कंडीशंस में आ जाएगा, यानी कि यूनिट कंजम्पशन को डायरेक्ट इसमें चेक करेगा। 101 से इतना है या जो भी है, तो 101 से इतना जो है उसमें आपका ये
है 101 से इतना के बीच में, इसका मतलब 100 तो ऑलरेडी होगा, तो 100 ऑलरेडी होगा तो ये 50 तो उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा, है ना। तो बिल पेड 120 के हिसाब से क्या होगा, 100 पर तो यहाँ देखिए ये 50 इसमें ऐड हो गया है, तो ये डायरेक्ट इस स्लैब में आएगा, 101 से 150 स्लैब में आएगा। पहला वाला इस स्लैब में आएगा 0 से 100 में, तो 101 से 150 स्लैब में आएगा, तो ये तो इसमें यहाँ क्या है 50 रुपीज फिक्स है। और नेक्स्ट यानी कि 101 से 50, तो 101 से 50 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 से माइनस करना पड़ेगा ना यूनिट कंजम्पशन, तभी तो पता चलेगा कि 101 से 150 में जो है कितना है, तो 150 से 120 को घटाएंगे तो कितना होगा 30। 30 हो जाएगा ना, 30 सर। ज्यादा हो जाएगा जी, हमको तो 20 यूनिट का लेना है। क्या करना पड़ेगा यहाँ 150 से 150 से तब नहीं करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, बोल नहीं रहे हैं, यूनिट कंजम्पशन माइनस क्या करना पड़ेगा, पिछला जो आपका है 100 और मल्टीप्लाइड विथ 3। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यूनिट कंजम्पशन 120 है, इसके पहले का रीडिंग 100 आपका ऑलरेडी लिया हुआ है, तो यूनिट कंजम्पशन में 100 घटा दीजिएगा, तो 101 से 150 के बीच में 20 यूनिट का कवर हुआ, उस 20 यूनिट पर 3 रुपया प्रति यूनिट लगा, तो इसका कितना हो जाएगा 50 प्लस ये हो गया 20 गुना 3 60, यानी 110 रुपया लगेगा, लगेगा ना। यस सर। यस सर। तो इसका नेस्टेड इफ से अगर हम बनाएंगे, तो नेस्टेड इफ में आपका जो कंट्रोल इफ कंडीशन चेक होगा पहले, ठीक है, कंडीशन किसके लिए चेक होगा 0 to 100 के लिए कंडीशन आप लिखेंगे पहले, अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, अगर ऐसा नहीं है देन इफ ये नहीं है तो यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ चेक करेगा 101 से 150, देन स्टेटमेंट 2 नहीं है तो इफ 151 से 200, स्टेटमेंट 3 इफ 100 201 से 250, स्टेटमेंट 4 इफ, जब तक कंडीशन आपका है, और 201 से 250 के बाद क्या है, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं ना एल्स, स्टेटमेंट 5, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट। I am writing on the basis of this problem. Is it clear? तो सर Yes, sir. जो फॉर्मेट हम लोग ले रहे थे, यहाँ पर लास्ट वाले इफ के बाद हम एल्स स्टेटमेंट लेंगे, यानी कि जब ये सारे इफ आपका कवर अप नहीं हो पाएंगे तब अदरवाइज में इसका मतलब है 0 to 100 भी नहीं हुआ, 100 to 150 भी नहीं हुआ, कोई ना कोई पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आएगा देन वहां से हमारा जो है कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करेगा ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करेगा तो वहां कंडीशन सब क्या करेगा फॉल्स होते जाएगा ना, किसी एक में हो जाएगा तो आगे का कंडीशन सब फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोड बाय स्टेटमेंट नहीं जाएगा, क्या जाएगा, मान लेते हैं ये कंडीशन ट्रू हो गया तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ जाएगा, जाएगा ना, बोल नहीं रहे जी। यस सर। हाँ, तो यहाँ जाएगा तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो इससे फॉलोड स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कर्सर डायरेक्ट इसमें चला जाएगा, यहाँ जाएगा तो फिर आपका ये भी फॉल्स होगा, तो यहाँ स्टेटमेंट 4 में नहीं जाएगा, फिर आपका कहाँ जाएगा एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में आपका जो है जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा। तो एक बार इसको लिखिए तो प्रोग्राम, इसके लिए प्रोग्राम लिखिए, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। सर अगर यूनिट 0 to 100 हुआ तो 50 रुपया ही लगेगा। क्या
सर अगर यूनिट 0 से 100 के बीच में हुआ तो सिर्फ 50 रुपया लगेगा। हाँ, 50 रुपया लगेगा, मतलब वो कस्टमाइज है, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी आप 2 रुपया 3 रुपया लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक मीटर का फिक्स चार्ज ही लगेगा इसमें। आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो फिर ये सब स्लैब में बढ़ जाएगा। ये 100 तक अगर है तो 50 रुपया फिक्स है, और पर यूनिट आपको 1 रुपया या 2 रुपया डाल दीजिए यहाँ। तो फिर वो जो आप 2 रुपया डालिएगा, 101 से 150 स्लैब में 50 की जगह वो भी ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यस सर। बस, तो अभी 50 मान के ही चलिए। अगर 50 मान के चलते हैं तो ये इसको आप पहले नोट कर लीजिए तो इसको। क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होगा तो इफ आपका काम नहीं करेगा और इफ एल्स भी काम नहीं करेगा। तो आइदर आपका इफ आपको लेना पड़ेगा सिंपल इफ, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स इफ कंडीशंस लेना पड़ेगा, और नहीं तो एलसी फ्लैटार जैसे आप सी में लेते थे, और अनदर नेस्टेड इफ, जो नेस्टेड इफ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नोट कर लिए? नोट Yes, कर sir. लिए तो इसको एक बार लिखिए, तो कोई लिख के हमको थोड़ा सिंटेक्स दिखाइए कैसे लिख रहे हैं आप। अगर कोई लैपटॉप से है तो दिखाइए, ताकि प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा वो भी ऑब्जर्वेशन जरूरी है। और नेस्टेड इफ से एलसी फ्लैडार से भी यूज करना चाहेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा? इफ और इफ और जैसे ही दूसरा इफ आएगा तो उसके पहले एल्स, यानी जहां इफ क्लोज होगा वहां से एल्स स्टार्ट होगा, एल्सिफ। एल्सिफ एल्सिफ, एंड यू जस्ट यूज दैट particular एल्सिफ लेडार also. The same manner, that is also nested. Way of writing will be changed only. Like जैसे आप सी में लिखते हैं if else if, तो वहां पर नंबर ऑफ इफ और नंबर ऑफ एल्स आपका जो है वो उसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है? सेम होता है या एक ज्यादा होता है एल्स? अगर एलसिफ लेडार यूज करते हैं तो नंबर ऑफ इफ आपका जो है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है? एनीवन? सेम होता है सर। कंडीशन एक ज्यादा होता है ना? सर इफ एक ही होता है। इफ एक ही होता है? इफ तो सब में एल्स लिखते हैं जी। एल्स एक ही होता है सर, एल्स। एल्स एक कैसे होता है? वहां पर आप सी में लिखते थे ना
if, then condition, then statement one, suppose one, then else, then if, condition, then a statement two, then else, if, condition one, two, three, statement three, and then else. ऐसा लिखते थे ना. नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो इफ एक दो तीन, एक दो तीन एल्स, नंबर ऑफ इफ और एल्स सेम होना है. कंडीशन आपका एक दो तीन और एक एल्स जो आपका है वो भी एक कंडीशन है. तो इसलिए स्टेटमेंट आपका जो है इफ एल्स में नंबर ऑफ स्टेटमेंट इफ से एक और एल्स से एक ज्यादा होता था. तो स्टेटमेंट वन टू थ्री एंड स्टेटमेंट फोर. तो वी हैव फोर स्टेटमेंट. तो ये कंप्लीट. एनीवन?